بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشیاء کی جماعت بندی۔ بچوں، جماعت بندی کا مطلب ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے گا۔ جماعت بندی کا مطلب مختلف اشیاء کو ان کی خصوصیات میں مماثلت کی بنا پر گروہوں میں تقسیم کرنا ہے۔ مماثلت کا مطلب ایک جیسا، یعنی ایک جیسی خصوصیات رکھنے والی چیزوں کو ایک گروہ میں ہم نے رکھ دینا ہے۔ تو مندرجہ ذیل تصویروں میں اشیاء کے 3 گروہ الف، بے اور جیم دکھائے گئے ہیں۔ نیچے دیکھیے گا، پہلے الف، درمیان میں بے اور بائیں طرف جیم گروپ دکھایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہر گروہ میں اشیاء مشترک خصوصیات کی بنیاد پر اکٹھی کی گئی ہیں۔ ہر گروہ میں مشترکہ خصوصیات کی بنیاد پر چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں۔ گروہ الف کی تمام اشیاء دھاتوں کی بنی ہوئی ہیں اور باورچی خانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ دائیں طرف الف گروہ کی ساری چیزیں دھات کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ ان کی مشترکہ خوبی ہے، اس وجہ سے انہیں الگ گروپ میں رکھا گیا ہے، الگ گروہ میں رکھا گیا ہے۔ گروہ بے کی اشیاء کتابیں ہیں، ساری کتابوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اور گروہ جیم میں پھل شامل ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ تو اس طرح بچوں، مشترکہ خصوصیات کی بنا پر ہم نے اشیاء کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کا نام جماعت بندی ہے چیزوں کی۔ جانداروں کی جماعت بندی۔ بچوں، اس دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں جاندار پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جانداروں کو ان کی خصوصیات میں مماثلت کی بنا پر مختلف گروہوں میں تقسیم کرنے کا عمل جماعت بندی کہلاتا ہے۔ خصوصیات کی بنیاد پہ، جیسے پچھلی سلائیڈ میں ہم نے پڑھا کہ باورچی خانے کی چیزوں میں مشترکہ خصوصیات ہیں کیونکہ دھات کی بنی ہوئی ہیں، اس لیے ان کو ایک گروہ میں تقسیم کر دیا ہے۔ کتابیں جو پڑھائی والی چیزیں ہیں ان کو ایک گروہ میں، اور کھانے والے جو پھل ہیں ان کو تیسرے گروہ میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو مشترکہ خصوصیات کی بنیاد پر جماعت یا گروہوں میں تقسیم کرنے کا عمل جماعت بندی کہلاتا ہے۔ آسان سی تعریف ہے۔ جانداروں کی جماعت بندی کا فائدہ۔ بچوں، فائدہ کیا ہے جانداروں کی جماعت بندی کا؟ آئیے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ جانداروں کی جماعت بندی ان کا مطالعہ آسان بنانے کے لیے بہت اہم ہے۔ یعنی ہم جانداروں کی جماعت بندی کے ذریعے ان کا آسانی سے مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جماعت بندی کے عمل کے دوران سائنسدان کسی غیر مانوس پودے یا جانور کی خصوصیات کا مطالعہ کر کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کا تعلق کس گروہ سے ہے۔ غیر مانوس جسے نہیں جانتے، فرض کریں سائنسدان کسی پودے کو دیکھتے ہیں، وہ سائنسدانوں کے لیے نیا ہے، تو اس پودے کی خصوصیات کا مطالعہ کر کے وہ بتا سکتے ہیں کہ اس پودے کا تعلق کس گروہ کے ساتھ ہے۔ اس میں گٹھلی ہے، اس کا بیج اندر ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے، اس میں پھول لگتے ہیں، اس میں پھول نہیں لگتے۔ تو اس طرح وہ اس پودے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے گروہ کا سراغ بھی لگا سکتے ہیں۔ وہ جاندار کی پہچان کے لیے اس کا نام بھی تجویز کرتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس پودے کا، اس غیر مانوس پودے کا یا جانور کا تعلق فلاں گروہ کے ساتھ ہے، تو پھر اس کا نام بھی رکھ سکتے ہیں، نام بھی تجویز کرتے ہیں۔ بچوں، آئیے اب ہم خلیے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ خلیہ، سیل۔ خلیہ کا لفظی مطلب خالی خانہ ہوتا ہے۔ جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، اس کا پورا چھتا چھوٹے چھوٹے خانوں سے مل کے بنا ہوتا ہے، اسی طرح تمام جاندار جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ سارے کے سارے خلیوں سے مل کے بنے ہوتے ہیں، اسی چھتے کی طرح۔ تمام جانداروں کے اجسام انتہائی چھوٹی اکائیوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو خلیے کہلاتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی دنیا میں جاندار ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، سارے کے سارے ان سب کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی خلیہ ہوتی ہے۔ تو بقول شاعر اس کو ایک شعر میں بھی بتایا گیا ہے، تعریف خلیے کی گئی ہے کہ ہے اینٹ جس طرح سے اکائی مکان کی۔ آپ جانتے ہیں کہ پورا مکان
उसकी इकाई ईंट है, यानी ईंटों से मिल के मकान बना है। खुलिया है यूं इकाई हर एक जिस्म जान के, है ईंट जिस तरह से इकाई मकान की, यानी जिस तरह से मकान की इकाई ईंट है, खुलिया है यूं इकाई हर एक जिस्म जान की, हर जिस्म जान की उसी तरह से खुलिया भी इकाई है। बच्चों, खुलिये के बाद हम पढ़ते हैं यक खुलवी और कसीर खुलवी जानदार। यक का मतलब एक, यानी ऐसे जानदार जिनमें एक खुलिया होता है, और कसीर का मतलब ज्यादा, यानी ऐसे जानदार जिनमें ज्यादा खुलिये होते हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर अंग्रेजी में कहते हैं। तो ऐसे जानदार जो एक खुलिये पर मुश्तमिल होते हैं यक खुलवी जानदार कहलाते हैं, और ऐसे जानदार जो एक से जायद खुलियों पर मुश्तमिल होते हैं कसीर खुलवी जानदार कहलाते हैं। बहुत आसान तारीफ है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं दर्जा बंदी का 5 आलमी निजाम, यानी दुनिया में 5 निजामों में चीजों की दर्जा बंदी की गई है। आलम का मतलब होता है दुनिया। एक ये चीज आपने याद रखनी है, जो जबर के साथ है आलम, उसका मतलब होता है दुनिया। 5 आलमी निजाम, 5 दुनियाओं का निजाम। और जेर के साथ आलिम, उसका मतलब इल्म जानने वाला। आलम दुनिया और आलिम इल्म जानने वाला, ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो दर्जा बंदी का 5 आलमी निजाम। तो मौजूदा दौर में साइंसदान जानदारों की 5 बड़े ग्रोहों में जमात बंदी करते हैं, जिनमें से हर जमात जानदारों का आलम यानी दुनिया कहलाती है। हर जमात जो है वो उसको जानदारों का आलम कहते हैं या दुनिया कहते हैं। इन 5 आलमों के नाम आलमे मुनीरा, आलमे प्रोटिस्टा, आलमे फफूंद, आलमे हैवानात और आलमे नबातात हैं। यानी आलमे मुनीरा, आलमे प्रोटिस्टा, आलमे फफूंद, आलमे हैवानात, हैवानात की दुनिया, नबातात की दुनिया, इंसानों की दुनिया, इस तरह के अल्फाज हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दर्जा बंदी का 5 आलमी निजाम है। दुनिया में तमाम चीजों को 5 निजामों में तकसीम किया गया है। बच्चों, दाएं तरफ 5 आलमों के नाम हैं और बाएं तरफ उनकी मिसालें हैं। मतलब लिखा है दाएं तरफ आलम, ये दुनिया है जानदारों की, तो आलम, और बाएं तरफ सामने उसके मिसाल है। नीचे देखें, आलमे मुनीरा, इसकी मिसाल बैक्टीरिया है, और आलमे प्रोटेस्टा, इसकी मिसाल काई है, जो सब्ज जाला सा आप देखते हैं पानी के ऊपर आया होता है। और तीसरा है आलमे फफूंद, फफूंदियां, फफूंदियों की दुनिया, आलमे फफूंद। इसमें खमीर आता है जो दूध को दही में तब्दील करते हैं, बैक्टीरिया। इसमें खुम्बी भी आ जाती है फफूंद में। और आलमे हैवानात चौथे नंबर पे है, जानवरों की दुनिया, इसमें सारे जानवर आ जाते हैं। और आलमे नबातात, इसमें सारे पौधे आ जाते हैं, इसकी मिसाल पौधे हैं। बच्चों, सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ये आलमे मुनीरा की मिसाल है। तो बैक्टीरिया यक खुलवी जानदार हैं, एक ही खुलिये पर मुश्तमिल होता है बैक्टीरिया। ये रुए जमीन पर हर जगह पाए जाते हैं, जमीन में हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। बाज दूसरे जानदारों और मुर्दा अजसाम में पाए जाते हैं और उनसे खुराक हासिल करते हैं। कुछ तो खुद तैयार करते हैं, लेकिन कुछ जो है वो दूसरे जानदारों में या मुर्दा जिस्मों में पाए जाते हैं, वहां से खुराक हासिल करते हैं, खुद तैयार नहीं कर सकते। ज्यादातर बैक्टीरिया जानवरों और पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जानवरों में, इंसानों में और पौधों में जो बैक्टीरिया पैदा करते हैं। ये नीचे तस्वीर में मुख्तलिफ शक्लों के बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। बच्चों, आगे हम काई के बारे में पढ़ते हैं। ये आलमे प्रोटेस्टा की मिसाल थी, एल्जी काई, जो सब जाला सा आप देखते हैं दरियाओं के किनारों, नदी नालों के किनारों, और प्लास्टिक के जो पाइप हैं जो मोटर के साथ लगे होते हैं उनमें भी लग जाता है। तो ये सब जाले को काई कहते हैं। तो काई यक खुलवी भी है और कसीर खुलवी भी।
एक खुलिये पर मुश्तमिल भी होता है और ज्यादा खुलियों पर मुश्तमिल भी होती है काई। ये जोड़ों, झीलों और समुद्रों वगैरह में पाए जाते हैं। ये जो काई है या खुलवी, जानदार और कसीर खुलवी है, ये कहाँ पाए जाते हैं? जोड़ों, झीलों और समुद्रों वगैरह में। इनमें सब्जीना होता है, सब्ज मादा, क्लोरोफिल। सब्ज मादा जो पौधों में होता है उसे सब्जीना कहते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि ये सब्ज ही नजर आते हैं, चारों तरफ सब्जे का एक जाल बिछा सा नजर आता है बाज़ औक़ात, जिसकी बदौलत ये बदरिया ज़ियाई तालीफ अपनी खुराक तैयार करते हैं। ज़ियाई तालीफ का मतलब, ज़िया का मतलब रोशनी, तालीफ का मतलब जुड़ना, यानी रोशनी की मौजूदगी में ये खुद अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। ज़मीन से इनको पानी मिलता है और नमकियात मिलते हैं और हवा से ऑक्सीजन मिलती है और फिर सूरज से रोशनी मिलती है। सब चीज़ों को मिला के ये अपनी खुराक तैयार करते हैं। काई की आम मिसालें क्लेमेडोमोनास, वॉलवॉक्स और स्पायरोजायरा हैं। ये सामने नीचे तस्वीरें दिखाई गई हैं। दाएं तरफ क्लेमेडोमोनास हैं, आगे दो इसकी मूछें सी हैं लंबी सी, और दरमियान में वॉलवॉक्स है और बाएं तरफ स्पायरोजायरा, ये जो सतून नुमा लंबे लंबे डंडों की तरह हैं। और आगे है फफूंदी, फिंजाई। ये आलम फफूंद से ताल्लुक रखती है। फफूंदी यक खुलवी, कसीर खुलवी या रेशा नुमा सूरत में पाए जाते हैं। फफूंदी के नीचे तस्वीरें भी दी गई हैं। एक खुलिये पर मुश्तमिल भी होती है और एक से जायद खुलियों पर भी मुश्तमिल होती है और रेशों की तरह लंबी लंबी भी इसकी शक्ल होती है। इन सब में सब्जीना नहीं होता, सब्ज मादा नहीं होता। आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसीलिए इनके अंदर सब्ज मादा नहीं है, सब्जी माइल नहीं है ये, इसलिए ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। क्योंकि सब्ज मादा नहीं होता, इसलिए ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये अपनी खुराक अपने इर्द गिर्द के माहौल से जज्ब कर लेते हैं, माहौल से ये खुराक जज्ब करते हैं अपने अंदर। खमीर, राइजोप्स और खुम्बियां वगैरह मुख्तलिफ किस्म की फफूंदियां हैं। तस्वीर में आप देखें, खमीर दाएं तरफ आपको नजर आ रहा है, ये छोटी छोटी गेंदों की तरह, और दरमियान में राइजोप्स है और बाएं तरफ खुम्बियां हैं। खुम्बियां भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। जब बारिश होती है तो टीलों के ऊपर और खेतों में और वीरान जगहों पर आम तौर पर खुम्बियां उगाती हैं। बच्चों, खमीर खुर्दबीनी फफूंदी है, यानी इतना छोटा होता है खमीर जो जानदार के खुर्दबीन के बगैर नजर नहीं आता। राइजोप्स गीली रोटी और फलों पर उगते हैं। आपने रोटी को और अचार को उल्ली लगी हुई देखी होगी, पंजाबी में फफूंदी को उल्ली कहते हैं। तो राइजोप्स जो नाम की फफूंदी है, ये गीली रोटी और फलों पर उगते हैं। फल गड़ सड़ जाते हैं तो उनमें भी फफूंदी लग जाती है, उल्ली लग जाती है। खुम्बियां कूड़े क्रिकेट और गोबर के ढेरों पर उगती हैं। ये तो आपका भी रोजमर्रा जिंदगी का मुशाहिदा है। खुम्बियों की शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं और गोबर के ढेर पर, कूड़े क्रिकेट पर बारिश होती है तो वीरान जगहों पर भी उगाती हैं। आगे हम पढ़ते हैं हैवानात के बारे में। आलम हैवानात में हैवानात हैं, जानवर हैं। तो कसीर खुलवी जानवरों का एक बड़ा ग्रोह जानवर है। एक से जायद खुलियों पर मुश्तमिल होते हैं इस ग्रोह के सारे जानवर। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, खुराक बनी बनाई खुराक खाते हैं। आपको पता है गाय, भैंस, बकरी, भेड़ वगैरह ये बनी बनाई खुराक खाते हैं, चारा खाते हैं, पट्ठे खाते हैं। ये अपनी खुराक के हुसूल के लिए पौधों और दीगर जानवरों पर इन्हिसार करते हैं। पौधों को भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुख्तलिफ जानवर चारा खाते हैं, और जानवरों को भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे शेर है, चीता है और भेड़िया है। ये गोश्त खाते हैं, जिंदा जानवरों का शिकार करके उसका गोश्त खाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों, पांचवा आलम, आलमे नबातात, पौधों की दुनिया, नबातात की दुनिया। पौधे कसीर खुलवी जानदार हैं, एक से ज्यादा खुलियों पर मुश्तमिल होते हैं। इनमें सब्जीना, अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं, इनमें सब्जीना की मौजूदगी की वजह से ज़ियाई तालीफ का अमल होता है।
सब्जीना सब्ज मादा मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसके पत्ते हरे नजर आते हैं और इसमें ज़ियाई तालीफ का अमल भी होता है। ज़िया का मतलब रोशनी, तालीफ का मतलब जुड़ना। रोशनी की मौजूदगी में ज़मीन से लिया गया पानी और नमकियात, हवा से ली गई ऑक्सीजन, सबकी मौजूदगी में मिलकर ये अपनी खुराक तैयार करते हैं, यानी सब्ज मादा तैयार करते हैं, जिसे सब्जीना कहते हैं। जानवरों की जमात बंदी। बच्चों, अब हम सिर्फ जानवरों के हवाले से बात करते हैं। उसकी साइंसदानों ने किस तरह से जमात बंदी की है। दो ग्रोहों में तकसीम किया है जानवरों को। एक फिकारिया यानी रीढ़िए, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, और दूसरे गैर फिकारिया यानी बेरीढ़िए, बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। फिकारिया जानवर, रीढ़िए। बच्चों, अब हम इन दोनों ग्रोहों को कदरे तफसील के साथ पढ़ते हैं। पहला ग्रोह था फिकारिया जानवरों का, रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों का। तो जमीन पर फिकारिया जानवरों की तकरीबन 47,000 अक़साम पाई जाती हैं। इतनी बड़ी तादाद में जमीन पर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर पाए जाते हैं। फिकारिया जानवरों को मजीद 5 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। कौन से हैं वो? नंबर 1 मुमालिया जानवर यानी दुधेलिए। मुमालिया का मतलब दुधेलिए, दूध देने वाले जानवर। और नंबर 2 परिंदे, जिनके पर होते हैं, जो उड़ते हैं। और तीसरा ग्रोह है रींगनीय, रींगने वाले जानवर, सांप, छिपकली और इस तरह के दूसरे जानवर रींगनीय होते हैं। और चौथा ग्रोह है जल थलिए। बच्चों, जल का मतलब पानी होता है, थल का मतलब सहरा यानी खुश्की है। तो ऐसे जानवर जो पानी में भी और खुश्की दोनों में रह सकते हैं, दो जिंदगियों वाले जानवर भी कहा जाता है इनको जल थलिए कहते हैं, अंग्रेजी में एम्फीबिया। और 5वां ग्रोह है फिकारिया जानवरों का, रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों का, मछलियां। सामने तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मुमालिया जानवर, दुधेलिए। बच्चों, रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों को हमने 5 ग्रोहों में तकसीम किया था। इनमें पहला ग्रोह मुमालिया जानवर है, दुधेलिए, नाम से जाहिर है दूध देने वाले जानवर। इंसान, गाय, बकरियां, गधे, घोड़े, शेर, बिल्लियां और खरगोश वगैरह का ताल्लुक फिकारिया जानवरों से है, यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के ग्रोह से है। इनको मुमालिया या दुधेलिए कहते हैं, चूंकि ये दूध देते हैं। इनकी खाल मुलायम और बालदार होती है। आप गाय, भैंस, बकरी, भेड़ को छू के देखें तो उनकी खाल मुलायम और नरम होती है और उसके ऊपर बाल होते हैं। अक्सर मुमालिया के बच्चे मां के पेट में नमू पाते हैं। अक्सर जो दूध देने वाले जानवर हैं, उनके बच्चे मां के पेट में परवरिश पाते हैं और पैदा होने के बाद फिर दूध पीते हैं और मां के दूध से परवरिश पाते हैं, मां के दूध के साथ बड़े होते हैं। मुमालिया जानवरों के जिस्मों की नरम खाल या उन पर मौजूद बालों का इन्हिसार आबो हवा पर होता है, यानी मौसम पर होता है। तो कुतबी रीछ यख बस्ता आबो हवा में रहता है। यख बस्ता का मतलब ठंडी आबो हवा में। हमारे इंतहाई शुमाल में, जमीन के इंतहाई शुमाल में बर्फ ही बर्फ है। वहां पर जो रीछ रहते हैं सफेद रंग के होते हैं, उन्हें कुतबी रीछ कहा जाता है। तो इसकी नरम खाल पर बालों की एक मोटी तह होती है। अल्लाह ताला ने इसको सर्द इलाके में पैदा किया है, तो इसको सर्दी से बचाने का भी इंतजाम किया है कि इसके जिस्म पर बालों की एक मोटी तह बनाई है। इसके बरक्स हाथी गर्म आबो हवा वाले इलाकों में पाया जाता है, इसलिए इसके जिस्म पर घने बालों की जरूरत नहीं होती। व्हेल और डॉल्फिन। व्हेल और डॉल्फिन भी मुमालिया हैं। इनको अक्सर लोग मछलियों में शुमार करते हैं, लेकिन ये दुधेलियों में शुमार होते हैं, दूध देते हैं। नीली व्हेल को दुनिया का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। जो नीचे तस्वीर आपको नजर आ रही है वो नीली व्हेल की है। इसकी लंबाई तकरीबन 35 मीटर और वजन तकरीबन 120 टन होता है। आप अंदाजा करें कि 35 मीटर लंबी कोई चीज हो और उसका वजन 120 टन हो तो वो कितनी बड़ी होगी।
अंधी इंडस डॉल्फिन, जिसे सूसू भी कहा जाता है, पाकिस्तान की दरियाई डॉल्फिन है। पाकिस्तान में भी डॉल्फिन रहती है सूसू के नाम से, जिसे जाना जाता है, जो सिवाय पाकिस्तान के दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। सिर्फ पाकिस्तान में ही पाई जाती है सूसू दरियाई डॉल्फिन। बच्चों, बड़े दिमाग वाले ममालिया, यानी जिनमें समझबूझ होती है, इंसान, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी ज़हीन ममालिया है, यानी इनका ज़हन दूसरे जानवरों से ज़्यादा काम करता है। इनका दिमाग बड़ा होता है। चमगादड़ उड़ने वाला ममालिया है दूध देने वाला लेकिन उड़ता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी तमाम मखलूक से अल्लाह ताला ने इसका रुतबा बड़ा बनाया है और सबसे ज़्यादा दिमाग इसी का काम करता है। क्यों भाई काका? और ममालिया का अगला ग्रोह है परिंदे, यानी जिनके पर होते हैं। चिड़ियाँ, कौवे, तोते, सीना सुर्ख, ये ऐसी चिड़िया है जिसका सीना सुर्ख होता है और नाम ही इसका सीना सुर्ख है। इसे अंग्रेजी में रॉबिन कहते हैं। तो बच्चों, चिड़ियाँ, कौवे, तोते, सीना सुर्ख, मुर्गी, फाख्ता वगैरह शिकारिया जानवरों के ऐसे ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्हें परिंदे कहते हैं। इनके पर होते हैं और ये उड़ भी सकते हैं। परिंदों के पर और चोंच होती है, आप देखते हैं, पर भी और चोंच भी। इनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं। कभी आप फाख्ता को पकड़ के या चिड़िया को पकड़ के देखें तो अंदर से आपको बिल्कुल खोखली, हल्की फुल्की नजर आएंगी। और इनमें हवा की थैलियां होती हैं। इनके अंदर पेट में, फेफड़ों में हवा की थैलियां होती हैं जिनमें हवा भरी रहती है और इनकी मदद से फिर आसानी से उड़ भी सकती हैं। इसलिए इनका वजन कम होता है क्योंकि इन्होंने उड़ना होता है। बाज परिंदे मसलन कीवी और शुतुरमुर्ग उड़ने के काबिल नहीं होते। उड़ना इनके बस में नहीं होता क्योंकि इनका वजन ज्यादा होता है, लेकिन पर होते हैं, इसलिए इन्हें दौड़ने वाले परिंदे कहते हैं। कीवी देखिए अपनी खुराक खाते हुए। बच्चों, परिंदे अंडे देते हैं जिन पर खोल होता है। इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। आपने मुर्गी के अंडे देखे होंगे। ऊपर वाला शुतुरमुर्ग का अंडा है। कहते हैं 24 मुर्गी के अंडे एक तरफ हों तो शुतुरमुर्ग का अंडा अकेला दूसरी तरफ होता है। क्या आप जानते हैं कि उल्लू एक बड़ी आंखों वाला परिंदा है? देख रहे हैं आप। और दूसरे नंबर पे बतख तैरने वाला परिंदा है। और तीसरे नंबर पे पेंगुइन बर्फ में रहने वाला परिंदा है। और चौथे नंबर पे हुदहुद दरख्तों के तने खोदकर अपना मस्कट बनाता है। इसे आम जुबान में लोग तरखान भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं, पहले नंबर पे शकरखोरा हमिंग बर्ड सबसे छोटा परिंदा है। बच्चों, शकरखोरा इसलिए कहते हैं, सामने जो नजर आ रहा है, कि ये फूलों का मीठा रस चूसता है। और दूसरे नंबर पे शाहीन बड़े दरख्तों या चट्टानों पर रहता है। आमतौर पर ये अपने घोंसले दरियाओं और झीलों के किनारे बनाता है ताकि आसानी से गोता लगाकर अपनी खुराक पकड़ सके। बच्चों, इसके बारे में, शाहीन के बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कई अशार है, जिनमें से एक है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और तीसरे नंबर पे है बाज एक शिकारी परिंदा है।
शिकार करने वाले लोग बहुत से बाज पालते हैं जिसके जरिए वो शिकार करते हैं दूसरे परिंदों का, दूसरे जानवरों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, पौधों की तकसीम के बारे में हम पढ़ते हैं जिस तरह के हमने जानवरों की तकसीम के बारे में पढ़ा। दो बड़ी बड़ी किस्में हमने पढ़ी, रीढ़ की हड्डी वाले और बगैर रीढ़ की हड्डी के। तो इसी तरह पौधे भी दो किस्म के होते हैं बुनियादी तौर पर, एक फूलदार पौधे और दूसरे गैर फूलदार पौधे। आइए सबसे पहले फूलदार पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे पौधे जिन पर फूल लगते हैं फूलदार पौधे कहलाते हैं। बड़ी सादा सी बात है। फूल पौधे के तौलीदी आज़ा हैं। इसका मतलब क्या है? तौलीद का मतलब होता है नस्ल बढ़ाना, पैदा करना। जैसे कुरान मजीद में है कि लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया ना किसी ने अल्लाह को पैदा किया, ना अल्लाह ने किसी को जना ना किसी ने अल्लाह को जना। तो फूल पौधे के तौलीदी आज़ा का मतलब होता है कि फूल पौधे के नस्ल बढ़ाने वाले आज़ा है। आज़ा का मतलब हिस्से होता है, जैसे हाथ पांव हमारे आज़ा हैं। तो फूल पौधे के तौलीदी आज़ा कैसे हैं कि फूल के अंदर आपको पता है बीज बनता है, बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो फिर नया पौधा उगाता है। तो इस तरह फूल पौधे के तौलीदी आज़ा हुए, यानी नस्ल बढ़ाने वाले आज़ा हुए। आइए आगे पढ़ते हैं। फूल पत्तियां, फ्लोरल लीव्स। फूल की पत्तियों को फूल पत्तियां कहते हैं, बस सीधी सी बात है। फूल की पत्तियों को फूल पत्तियां कहते हैं। फूल की बैरूनी सब्ज रंग की पत्तियों को अंखड़ियां, बाहर वाली सब्ज रंग की पत्तियां आप देख रहे हैं हरे रंग की, नीचे से जो ऊपर की तरफ है वो अंखड़ियां कहलाती हैं। और अंदरूनी रंगदार पत्तियों को पंखड़ियां कहते हैं। और अंदर इस हरे रंग की पत्तियों के अंदर सुर्ख रंग का फूल है, उसकी जो पंखड़ियां हैं, उसकी जो पत्तियां हैं उनको पंखड़ियां। बाहर वाली सब्ज रंग की अंखड़ियां और अंदर वाली सुर्ख रंग की पंखड़ियां। अंखड़ियां और पंखड़ियां, कितना आसान है याद रखना। तो फूलदार पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। जितने भी फूलदार पौधे होते हैं उसमें फल के अंदर बीज होता है। जैसे तरबूज आप देखें तो फल के अंदर बीज होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं। खरबूजे के भी फल के अंदर बीज होते हैं, सेब के भी फल के अंदर बीज होते हैं, आम के बीज भी फल के अंदर होते हैं, गुठली अंदर होती है, आड़ू के बीज भी फल के अंदर होते हैं। जितने भी फूलदार पौधे हैं उनके बीज फल के अंदर होते हैं। ये फूलदार पौधों की शिनाख्त है। बच्चों, आइए हम आपको अहम मालूमात देते हैं फूल के बारे में। फूलदार पौधों के हर बीज के अंदर एक नन्हा पौधा होता है। अगर बीज को हम जमीन में बोएं तो एक पौधा निकलता है। वो कैसे निकलता है? बीज के अंदर पहले से मौजूद एक नन्हा सा पौधा मौजूद होता है जिसे जनीन कहते हैं, जो अभी उगने की हालत में नहीं होता। अंग्रेजी में एम्ब्रियो कहते हैं और उर्दू में जनीन कहते हैं। जनीन में एक या दो बीज पत्ते होते हैं। वो जो पौधा उगता है, उगते हुए आप देखें या एक पत्ता निकल रहा होगा या दो पत्ते निकल रहे होंगे। तो ये जनीन के अंदर ही होते हैं दो बीज पत्ते। बीज पत्तों में खुराक जमा होती है, इसीलिए तो ये उगते हैं, खुराक के जोर पर उगते हैं, जो जनीन अपनी नमो के दौरान इस्तेमाल करता है। ये खुराक होती है जो जनीन अपनी बढ़ने के दौरान उस खुराक को इस्तेमाल करता है। घास खानदान के पौधों में सिर्फ एक बीज पत्ता होता है। कई पौधों में दो बीज पत्ते होते हैं और कई पौधों में एक बीज पत्ता होता है। यानी कई पौधों के बीज में एक बीज पत्ता और कई पौधों के बीज में दो बीज पत्ते होते हैं। उगते हुए पता चल जाता है कि ये इस बीज में एक बीज पत्ता है या दो बीज पत्ते हैं। अब आइए पढ़ते हैं यकदाला पौधों के बारे में। मोनोकाट प्लांट, नाम से जाहिर है यकदाला। ऐसे पौधे जिनके बीज में एक ही दाल होती है, दो टुकड़े नहीं होते। जैसे चावल है एक ही दाल पर मुश्तमिल है। जई, जैसे आम जुबान में जवी कहते हैं, पौधों जानवरों को चारा डालने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बीज में भी एक ही दाल होती है। और गंदम,
गंदम का बीज अकेला ही होता है, दो दालें नहीं होती इसकी। तो ऐसे फूलदार पौधे जिनके हर बीज में एक ही दाल होती है, इनको यकदाला पौधे कहते हैं। जैसे जई, गंदम, चावल वगैरह सब यकदाला पौधे हैं। यकदाला पौधों की निशानियां। यकदाला पौधों में पत्तों की रगें एक दूसरे के मतवाजी होती हैं। ये पहली निशानी है। आप दाएं तरफ वाली तस्वीर में देखें, पत्ता है, पत्ते के ऊपर रगें एक दूसरे के मतवाजी हैं, एक दूसरे की सीध में है, आपस में मिलती नहीं है। इसको कहते हैं मतवाजी होना। पहली निशानी तो ये है कि पत्ते यकदाला पौधों के, इसके ऊपर जो रगें हैं वो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, मतवाजी होती हैं। और दूसरी निशानी, इनके फूलों की पत्तियां 3 या 3 का ज़ेफ होती हैं, गुना होती हैं। 3 का ज़ेफ किस तरह से निकालते हैं? पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, इस तरह से आगे। या 3 पत्तियां होंगी, या 6 होंगी, या 9 होंगी, या 12 होंगी, या 15 होगी, या 18 होंगी, इस तरह से चलती जाएंगी। 3 या 3 का गुना, 3 या 3 का ज़ेफ होती हैं। अब बच्चों पढ़ते हैं दो दाला पौधे, डाइकॉट प्लांट्स। ऐसे फूलदार पौधे जिनके हर बीज में 2 दालें होती हैं। मसलन गुलाब, मटर, लुबिया, चना और मूंगफली वगैरह। मूंगफली तो आपने खाई होगी। मूंगफली का बीज 2 टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है। और इसी तरह चने की दाल आपने देखी होगी। चने का बीज गोल होता है, लेकिन चने की दाल 2 टुकड़ों पर मुश्तमिल होती है। इसी तरह लोबिया और गुलाब वगैरह। तो 2 दाला पौधे ऐसे फूलदार पौधे जिनके हर बीज में 2 दालें होती हैं। अब हम पढ़ते हैं 2 दाला पौधों की निशानियां। 2 दाला पौधों में पत्तों की रगों का निज़ाम जाल की सूरत में होता है। यकदाला पौधों में पत्तों की रगें एक दूसरे के मतवाजी थीं, हमने पढ़ा। मगर 2 दाला पौधों में पत्तों की रगें मतवाजी नहीं होती, बल्कि जाल सा बना रही होती हैं। जैसा कि बाएं तरफ की जो तस्वीर है उस पे बिल्कुल वाज़े नजर आ रहा है, पत्ते के ऊपर रगों का जाल। इनके फूलों की पत्तियों की तादाद अमूमन 4 या 5 या इनका ज़ेफ होती है, गुना होती है। पत्तियां 4 होती हैं या 5 होती हैं, या इनका ज़ेफ पहाड़ा पढ़ के 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 चौके 16, इस तरह से होती है। या अगर 5, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 चौका 20, इस तरह से इनकी पत्तियां होती हैं। और जो यकदाला थी उनमें 3 या 3 का ज़ेफ था। अब हम यकदाला और 2 दाला पौधों का मुवाजना करते हैं, दोनों का मुकाबला करते हैं। यकदाला में 1 दाल होती है और उसके बिलमुकाबल 2 दाला में 2 दालें होती हैं, सीधी सी बात है। और दूसरी, फूल पत्तियों की तादाद का फर्क था। 3 यकदाला में 3 या 3 फूल पत्तियों का ज़ेफ होता है। 3 होती हैं या 3 का पहाड़ा पढ़ के हम ज़्यादा पत्तियां मालूम कर सकते हैं, जितनी हो सकती हैं। और इसी तरह जो 2 दाला है उसमें 4 या 5 फूल पत्तियों का ज़ेफ, 4 या 5 फूल पत्तियां होती हैं या उनका फिर ज़ेफ होता है। और तीसरी है मतवाजी रगें होती हैं। जो यकदाला पौधे हैं उनके पत्तों की रगें एक दूसरे के मतवाजी होती हैं, और जो 2 दाला पौधे हैं उनके पत्तों की रगें जाल सा बना रही होती हैं, जाल नुमा रगें होती हैं, जैसा कि तस्वीरों से जाहिर है। अभी तक बच्चों हमने फूलदार पौधों के बारे में पढ़ा। आइए अब गैर फूलदार पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पौधों की, इन पर फूल नहीं लगते, ये गैर फूलदार पौधे हैं। ऐसे पौधे जिन पर फूल नहीं लगते गैर फूलदार पौधे कहलाते हैं, सीधी सी बात है। इनकी मशहूर मिसालों में मखरूतिये, जिनको कोने लगती हैं, मखरूती शक्ल की, आप नीचे देख रहे हैं कोन लगी हुई है। जैसे बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, कोने खाते हैं, इसी तरह की शक्ल होती है। और पत्ते इनके सिलाईदार होते हैं। हमारे शुमाली इलाका जात मरी, कागान वगैरह यहाँ कसरत के साथ ये दरख्त होते हैं। और दूसरा काई मॉस या अलजी भी कहते हैं इसको। तो ये सब जाला सा मैदानी इलाकों में भी काफ़ी होता है। ये बाएं तरफ जो नीचे तस्वीर है
उसमें दरख्त की जड़ों के, दरख्त के तना के ऊपर चढ़ा हुआ है, और नदी नालों के साथ भी कसरत के साथ मिलता है। पानी के जो प्लास्टिक के पाइप हैं उनमें भी अक्सर अंदर काई जम जाती है, तो सब जाला सा काई कहलाता है। और इसी तरह फर्न और हजार, लिवर वर्ड वगैरह शामिल हैं। जो ऊपर बाएं तरफ वाली तस्वीर है वो हजार की है, फर्न की है। इनके पत्ते भी सिलाईदार होते हैं और ये भी ठंडे इलाकों में कसरत के साथ होते हैं। मखरूतियों में चीड़, देवदार और सर्व जैसे पौधे शामिल हैं। मखरूती शक्ल की कोने जिनको लगती हैं, कोन का मखरूत कोन को ही कहते हैं, मखरूती शक्ल, कोन जैसी शक्ल। तो मखरूतियों में चीड़, चीड़ बाएं तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बहुत लंबे लंबे दरख्त होते हैं। देवदार, देव की तरह ऊंचे लंबे, दरमियान वाली तस्वीर है। और सर्व जैसे पौधे शामिल हैं दाएं तरफ। सर्व, आम लोग सरु कह देते हैं लेकिन सर्व है। ये भी गोल ऊपर जाते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में इनकी कतारें नजर आती हैं पार्कों में। मखरूतियों के पत्ते सिलाई नुमा होते हैं, सिलाई की तरह होते हैं, आप देख रहे हैं। इनके बीज इनके मखरूती फल में बनते हैं। ये जो मखरूती शक्ल का फल है इसके अंदर इनके बीज बनते हैं और इनकी तौलीद इन्हीं बीजों के जरिए होती है। यही बीज इनकी बढ़ोतरी का सबब बनते हैं, इनकी नस्ल को आगे बढ़ाने का सबब बनते हैं, इनकी पैदाइश का सबब बनते हैं। गैर फूलदार पौधों में फर्न भी एक गैर फूलदार पौधा है। तो फर्न के पत्ते छोटी छोटी पत्तियों में मुनक़सिम होते हैं। आप जरा गौर से पत्ते की तरफ देखिएगा, बड़े पत्ते की तरफ। एक बड़ा पत्ता छोटी छोटी पत्तियों पर मुश्तमिल है, यानी बड़ा पत्ता छोटी छोटी पत्तियों में तकसीम हुआ पड़ा है। तो इनकी तौलीद इनके पत्तों की निचली सतह पर लगे हुए जीरा नुमा बीजों के जरिए होती है। इनकी बढ़ोतरी ये इनके बीजों की वजह से होती है। और अल्लाह की कुदरत देखिए कि इनके बीज पत्तों के साथ लगे हुए होते हैं। अगर आप अपने घर में, पार्कों में, कई जगहों पे आप देखें पत्थर चट पौधा, पत्थर चट, उसके बीज भी पत्तों के किनारों पर लगे हुए होते हैं जिनके साथ उसकी तौलीद होती है और नए पौधे बनते हैं। तो इसमें भी जो बीज हैं बूर नुमा, छोटे छोटे जीरा नुमा, जैसे आपके बावर्ची खाने में जीरा सफ़ेद और जीरा सियाह होता है, उसी तरह का छोटा छोटा बारीक बारीक बूर की तरह का जीरा लगता है। यही जीरा फिर आगे नए पौधे पैदा करने का सबब बनता है। और ये बीज लगा कहाँ होता है? पत्तों की निचली सतह के ऊपर। काई और हजार, मॉस एंड लिवरवर्ट, ये भी गैर फूलदार पौधों में शामिल हैं। काई और हजार में सादा तना और छोटे छोटे पत्ते होते हैं जैसा कि नजर आ रहे हैं। काई तो मैंने पहले बताया सब्ज जाला सा होता है जो नदी नालों के किनारों और दरख्तों के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। इनमें तौलीद भी बूर यानी जीरा के जरिए होते हैं। छोटा छोटा डोडियों के अंदर जीरा बनता है जिसको जो कि जमीन में जाकर नए पौधे पैदा करने का बायस बनता है, जो कि कीसा के अंदर बनते हैं। कीसा, डोडी, हम पंजाबी में खीसा लफ्ज बोलते हैं जेब को, खीसा, भाई तेरे खीसे च किन्ने पैसे है, तो खीसा, कीसा है लफ्ज है, हम खीसा बोल देते हैं। तो ये छोटी छोटी जेबें, फलियां सी होती हैं जिनके अंदर जीरा बनता है जो कि जमीन में जाता है और नए पौधे उगने का बायस बनता है।